A very good morning to one and all present here, esteemed judges, respectful guests, and my fellow contestants. As we gathered here with the Department of Health and Family Welfare Solan in collaboration with the NGO, Siksha Kranti presents a proposal to organize a declamation in our esteemed educational institution on the World Health Day, which is celebrated every year on April 7th to promote the health awareness, and we are reminded of the vital importance of the health in our lives. Now let us commence the competition. I invite our first up participant, Nishant Thakur, to take the stage and spread the knowledge of awareness among us. Let's welcome him. Health is not just the absence of disease. It is also a state of the complete physical, healthy mind, social well-being. It's about having the resources and opportunities to live a fulfilling life, free from preventable illness and disease. In our rapidly changing world, we face numerous health challenges from infection disease to climate change and mental health issues. But with collection and commitment, we can make a difference. परमादरणीय मंच, प्यारे साथियों, मैं आज आप लोगों के सामने हमारे कुछ श्लोकों के माध्यम से जो है स्वास्थ्य पर जो है अपने विचारों को रखूंगा, जिसमें मैं एक स्वस्थ व्यक्ति और अस्वस्थ व्यक्ति के बारे में जो है उनको परिभाषित करूंगा। तो मेरा पहला श्लोक है, नात्य श्रंतस्तु योगस्ति ना चैकांत मनंश्रत न जाति स्वप्रशी लक्ष्य जाग्रतो नैव चार्जुन। भागवत गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 16। अति खाने, अति ना खाने, अति सोने या जागने से जो है हमें योग की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में योग को प्राप्त नहीं कर सकता, उसे स्वस्थ नहीं माना जा सकता। एक स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा क्या है? आयु सत्व बल आरोग्य सुखी प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहार सात्विक प्रिय। इस श्लोक के अनुसार हमारी भागवत गीता में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसको आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति जो है वो ऐसा उसको प्रवृद्ध करने वाला तथा रस युक्त, स्निग्ध तथा मन को प्रसन्न करने वाला भोजन पसंद है, उसे जो है एक स्वस्थ व्यक्ति की संज्ञा दी गई है। We all know that being healthy is very important, but have you ever thought that our health depends on how clean we are? Cleanliness is more than just a good habit. It's a cornerstone of good health. It is the first step preventing ourselves and others from many diseases. When we take care of our environment, we reduce the risk of spread of disease caused by pollution and unsanitary conditions. Swachh Bharat, Swasth Bharat. These are not just words. These are the very essence of stronger, healthier, and more progressive India. Today, I stand before you to speak on the truth so simple yet so profound. Cleanliness and health are deeply interlinked. Without cleanliness, health is just a dream, and without health, all our dreams fade away. Let's begin with a simple question. Have you ever seen a healthy person living in a dirty, unhygienic environment? Or have you seen a disease flourishing in a clean, sanitized space? The answer is loud and clear, no. Cleanliness is not just a sweeping on roads or washing your hands. It is about creating a way of life. It is about hygiene in our homes, in our college, or in our surroundings, and purity in our habits. We keep our environment clean, we break the cycle of infections, control the spread of deadly diseases, and promote mental and physical well-being. Gandhiji once said, sanitation is more important than independence. Why did he say that? Because he knew that true freedom begins with a healthy body and a healthy mind. And that starts with cleanliness. The building block of our family, my mother, she is a yoga instructor. She started her journey with yoga in 2015 for weight loss. But now, from past 9 to 10 years, she made my whole family health conscious. I will not tell you to stay healthy or start focusing on your health, but I will tell you that how to stay healthy in a practical way. Because I think our country is lacking behind because very limited mindset or practical knowledge. So we know that all our body health is depend on our gut, that how our body digests our food. We all know that how when we take food, firstly it goes in our stomach, then in intestine, and then finally it excreted.
what do you think that every food we consume take similar amount of time to digest or similar amount of time to complete the cycle? Of course not. Fruits take 3 hours, vegetable take 6 hours, and grains take 16 hours to digest. Point to be noted that the lesser the amount of water in our food, the higher and harder it gets to digest in our body. So what happens to that undigested food? It rots and ferment inside our body. These undigested food create a layer of coating of waste material around our intestine. Our intestines have villi. Maximum of us are from medical background, so they all knows that intestine have finger-like projection and that are called villi. So the waste, all that waste which are inside our intestine stick around the villi, and that villi absorb all that waste and send it to the bloodstream. With that bloodstream, all the waste sends to all the organs, and when that waste get in our skin, it causes acne. If it get in airways, it causes asthma. And when it sticks to the intestine, it causes constipation. And all we know that the constipation is the reason for all the diseases. So what can we do to help this and make our body clear with all that waste? We should start intermittent fasting. जैसा कि आप सबको विदित है कि आज क्या है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने के लिए हम आप के बीच उपस्थित हुए हैं। तो इसको मनाने का हमारा उद्देश्य क्या रहता है कि स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना। ठीक है, पूरे विश्व में ये मनाया जाता है। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये 7 अप्रैल 1948 को जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। उसके पश्चात ये 1950 से हमने इसको मनाने का शुरुआत की, उसी की याद में। तो ये हर वर्ष मनाया जाता है, पूरे विश्व में मनाया जाता है। और इसको मनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य तो यही रहता है कि स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंट ट्रेड के मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ। तो हमारा इस बार का जो थीम है वो है स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। तो ये हमारा थीम थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड है कि स्वस्थ शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, कहाँ से स्वस्थ शुरुआत होती है, कहाँ से होती है। एक मदर से होती है ना, एक माँ। जब एक माँ प्रेग्नेंट होती है और उसके पश्चात जब एक न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसकी देखभाल है ना, उसका स्वास्थ्य जो है और उसका फ्यूचर सुरक्षित, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, स्वस्थ शुरुआत कैसे होती है माँ और बच्चे की। अगर हमने विश्व स्वास्थ्य को दुरुस्त करना है तो बहुत ज़रूरी है कि हम में शब्द कौशल भी होना चाहिए और हम में कर्म कौशल भी होना चाहिए। बुद्धि युक्तो जहाति है उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजुस्व योगः कर्मसु कौशलम। अर्थात कर्म को कुशलतापूर्वक करना ही एक योग है। और मैं भी इसी बात में विश्वास रखता हूँ। चोर को चोर हम क्यों कहें, खता किसी की सज़ा हम क्यों सहें, आने वाला कल हमें ही चोर ना कहें। साथियों, इसलिए चुप ना रहें, कुछ ना कुछ ज़रूर कहें, कुछ ना कुछ ज़रूर कहें, कुछ ना कुछ। और वो क्या करना है, वो यही करना है। आदरणीय प्रधान मैम बैठे हैं, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, कभी इस बात का मुद्दा नहीं बनाया है। सेल्फ फंडेड ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाते हुए शब्द को भी आगे ले जा रहे हैं और कर्म को भी आगे ले जा रहे हैं। आज जो है शब्दों के माध्यम से, इन्हीं कर्म के माध्यम से भी हम अपने हिस्से का काम इस स्वच्छ भारत को स्वच्छ विश्व, स्वस्थ विश्व बनाने के लिए ज़रूर देंगे। सचमुच हम शब्दों में बहुत आगे चले गए, अब तो करने की ही आवश्यकता है। और ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं, और प्रधान जी बैठे हैं, मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि हम क्या एक काम कर सकते हैं व्यवहारिक तौर पर, कुछ ऐसा जो ये स्पॉट है ये अडॉप्ट किया जाए। आप सभी, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप अपनी हामी दें और स्वेच्छा से आगे आएँ। सूरज सर, मैं ज़रूर चाहूँगा कि कुछ ऐसा खाका तैयार किया जाए कि हम एक स्पेस अडॉप्ट करें। उसके बाद ऐसा हो कि महीने में या फोर्टनाइटली इस तरह के अभियान होते रहें ताकि जनमानस में एक अच्छा संदेश जाए। क्योंकि मैंने यह देखा है, जब लोगों से पूछते हैं तो लोग बोलते हैं प्रशासन सरकार नहीं साथ देती हैं, और जब प्रशासन सरकार को बोलते हैं वो बोलते लोग कचरा फेंक देते हैं। तो एक ऐसा कुचक्कर शुरू हो गया है, और इसने क्या कर दिया है, इसने सचमुच हम सब का नुकसान कर दिया है। तो मुझे लगता है कि कुचक्कर से तो
धर्म की स्थापना नहीं होगी, कुचक्र से तो स्वच्छता की स्थापना नहीं होगी, बल्कि कुशलता से होगी, शब्द कौशल से होगा, कर्म कौशल से होगा। योगा करना आपके लिए बेस्ट होगा। जो नशे करते हैं उनको नशे छुड़वाने के लिए भी तो योगा ही करवाते हैं। तो आप लोग पहले ही इस चीज़ पे अपना माइंड कंसंट्रेट करें। इसके अलावा सत्यम सर ने जैसे स्वच्छता के बारे में बोला, तो इस चीज़ से तो मैं भी बहुत परेशान हूँ। मैं हर जगह पे यही बोलती हूँ कि जैसे चलो दूर की बात छोड़ो, हम आप बच्चों से ही शुरू करते हैं। आप लोग चिप्स चॉकलेट वगैरह डेली खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, किसी भी शॉप में जाके आप लोग उसको ख़रीदते हैं और वहीं पे उसको खोल के जो है खाना शुरू कर देते हैं। बट आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, जिस शॉप से आप सामान खरीदते हो ना, वहाँ पे एक डस्टबिन भी होता है। बट कोई भी बच्चा उस डस्टबिन में उस चीज़ को फेंकेगा नहीं। जहाँ सड़क में लगे वहीं फेंक दिया तो वो बन गया कूड़ा, है ना। फिर दूसरा क्या होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे रूम रेंट पे रहते हैं, तो रूम रेंट पे रहते हो, आपका डेली वेस्ट मटेरियल आता है, चाहे वो सॉलिड है चाहे लिक्विड है ना। तो आप लोगों ने क्या करते हो कि अपना जो वेस्ट मटेरियल है अपने घर में तो कोई नहीं रखता है, सब साफ कर लेते हैं अपना घर, फिर फेंकते कहाँ है? जहाँ खाली जगह रखती वहाँ पे फेंक दिया। आपने तो खाली अपना घर खाली करके बना दिया हमारे बन गए पहाड़, है कि नहीं। तो मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी भी, जितने भी बच्चे रूम लेके रहते हैं वो पहले ही अपने मकान मालिकों से बात करें कि हमने अपना वेस्ट मटेरियल डालना कहाँ है। अगर मकान मालिक आपका वेस्ट मटेरियल नहीं ले रहे हैं, अगर वो बोलते हैं कि जहाँ मर्जी आती है वहाँ फेंक दो, तो आप लोग ऐसे लोगों का रूम ही मत लो। ऐसा नहीं है कि भी आपको रूम नहीं मिलेंगे। जब आप लोग शुरुआत करेंगे कि हम लोग ऐसी जगह पे रहेंगे नहीं जहाँ हमारे कूड़े का निष्पादन नहीं हो रहा है, तो मकान मालिक सोचेंगे कि नहीं, हमने अपने कूड़े का इंतज़ाम करना है बच्चों का। तो अगर आप लोग बजाय इधर उधर फेंकने की बजाय अपना कूड़ा जो है अपने मकान मालिक के घर के बाहर रखेंगे ना, तो वो इंतज़ाम करेंगे उस कूड़े का। इस वजह से ये स्वच्छता आएगी। क्योंकि अब लोगों ने क्या कर दिया कि बड़े बड़े प्लॉट बना लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लिए। एक एक बिल्डिंग में जो है कम से कम 80-90 बच्चे रखे हुए हैं। अब 80-90 बच्चे हैं तो कूड़ा तो सब फेंकेंगे, चाहे वो कागज़ है, चाहे टॉफ़ी चॉकलेट का रैपर है आपके, या आपका दाल साग सब्जी जो कुछ भी होता है। तो प्लीज़ अगर आप लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे, जैसे आप लोग अपना घर साफ़ करते हैं, डेली अपने आप को नहा धो के साफ़ सुथरे रखते हैं, अगर इसी तरह से जो है आप स्वच्छता पे भी ध्यान देंगे तो ये प्रॉब्लम जो है जल्दी सॉल्व हो जाएगी। पर्यावरण पे जो हमारा होना चाहिए, बहुत लंबा विषय है, बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी, कम शब्दों में 2-4 बातें कहना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारी बातें सब लोग कह चुके हैं। एक तो हमारी चिंता का घेरा है, हमें बहुत चिंता है। देश में प्रदूषण है, करप्शन है, फलानी जगह सफाई नहीं है, बहुत हमको चिंता के हमारे विषय हैं। और एक हमारे प्रभाव का घेरा है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। अगर हर व्यक्ति उतना कर ले जितना वो खुद कर सकता है तो उसका असर बहुत बड़ा होता है। हम इंतज़ार करते हैं कि कोई और आके करेगा। सबने यहीं कचरा फेंका है तो मैं भी फेंक दूं। सबने फेंका है, आप मत फेंको। अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी ले ले तो छोटे छोटे पहलों से बड़ा प्रभाव मुमकिन है। तो एक तो आज सभी लोग जितने यहाँ बैठे हैं वो अगर ये प्रण कर लें कि मैं नहीं कचरा फैलाऊंगा, तो कितना सिंपल है ना। और आप हर व्यक्ति से जुड़े 20 लोग हैं कम से कम। जब आप चलोगे तो आप कहेंगे अरे ये नहीं कर रही है, तो 20 पे अगर यहाँ 100 बैठे हैं तो सबके साथ 20 लोग जोड़ लीजिए, कितना हुआ। मेरी तो गणित कमज़ोर है। आप बताइए कितना हुआ, कितना हुआ 2000। हाँ, 100 में 20 जोड़ेंगे तो 2000, और 2000 के साथ 20-20 जुड़ते चले जाएंगे तो कितना बड़ा प्रभाव हो जाएगा। तो हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी ले। दूसरा, हमारी जो बहुत सारा इन्फ्लुएंस हमारा वेस्टर्न और पाश्चात्य संस्कृति का जो है, यूज़ एंड थ्रो का। पहले हमारे यहाँ ये नहीं था। हमारे यहाँ स्टील के बर्तन इस्तेमाल होते थे। गांव में भी शादी होती थी तो बड़े लोगों के घरों में बड़े बर्तन हुआ करते थे जो उन्हीं शादियों में चलते थे। अब हम क्या करते हैं, यूज़ एंड थ्रो। हमारे यहाँ तो इतना अपसाइकिल करने का रिवाज था कि एक कपड़ा घर में किसी का होता था
तो उसको भाई बहन, मासी के बच्चे, बुआ के बच्चे सब पहनते थे, उसके बाद फिर वो पोछा भी बन जाता है। तो कुछ थ्रो नहीं कर रहे थे हम, अब हम क्या करते हैं, एवरीथिंग इज़ यूज एंड थ्रो। नॉट सेइंग टू मच, बहुत सारी बात और नहीं करते हुए हम बिल्कुल दृढ़ संकल्पित हैं। आपको LR में हमारा प्लास्टिक का जितना कचरा है मैम, कैंपस से बाहर नहीं जाता। यहाँ कंटेनर बने हुए हैं सारे जगह से, वहीं जाता है प्लास्टिक का। शायद स्टूडेंट्स को भी पूरी तरीके से नहीं मालूम होगा। और जितना बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा अब हमारा, वो मोस्ट प्रॉब्ली इस हफ्ते से हमने ड्रम्स हमारे रेडी हो रहे हैं, वो यहीं पे बायोडिग्रेड होगा और उसकी हम खाद बनाएंगे, जो इसमें बायो फर्टिलाइज़र जैसा भी बनेगा। उसको हम गांव में और सब जगह वैसे तो अपने यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे, पर जहाँ भी एक्सेस होगा, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, तो वो हम डिग्रेड करेंगे और उसको हम अपने कैंपस को ज़ीरो वेस्ट कैंपस बनाएंगे। क्योंकि घर से ही सफाई शुरू होती है, बाहर की तो बाद में है। पहले हम किसी और को सीख देने के बजाय हम पहले अपने घर से सफाई करेंगे। और बाकी स्टूडेंट्स हमारे बहुत रिसेप्टिव हैं और हमारी ये मंशा है कि हम ऐसे मंच, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको दें कि आप जब यहाँ से निकल कर जाएँ तो लोग पूछें कि आप कहाँ से पढ़े थे। तो ऐसे संस्कार लेके जाइए, ऐसी शिक्षा लेकर जाइए कि लोग पूछें आपसे कि आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई। थैंक यू सो मच। रिस्पेक्टेड सच्ची मैम, डायरेक्टर LR ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, स्वास्थ्य विभाग से आए आयोजनकर्ता, और सत्यन सर, मैं आज के कार्यक्रम के लिए LR ग्रुप की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और भविष्य में भी हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की एक्टिविटी हमारी चलती रहे और LR इंस्टीट्यूट हमेशा इसमें पार्टिसिपेट करता रहेगा। मैं LR इंस्टीट्यूट की तरफ से सभी हमारे जो बच्चे आज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और जो यहाँ पे सुनने के लिए बच्चे बैठे थे, सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू।